In this chapter, that is the third chapter, fiber to fabric, we have studied that cloth protect us from heat, cold, and there are the fabric which are made up of fiber. There are two types of fiber, natural and synthetic fiber. We get natural fiber from plants and animals, and we have studied up to flax, I think. So today we will be knowing about how that fiber is converted to yarn and yarn to fabric. So we have studied about the natural Sir, fiber, synthetic fiber. Yes. sir, we have studied at last. Okay. What was the last topic, Aditi? Sir, we have studied last jute plant. About jute plant. Okay. So about jute, Yes, we are sir. knowing that ki jute plant grow best in warm and humid climate. It is grown in India, Bangladesh, and China during the rainy season. है ना? The plant are harvested after they flower, but before the flower form seed. Okay, and the stem are tied into bundle and soaked in water for about 20 days. Okay, so jute is a strong and durable. We have studied about these things, and we are knowing ki uh, why the jutes are used for making bags for planting tree sapling because jute is Sir, because biodegradable. jute is biodegradable. Yes, that is the reason. Okay, the saplings and because it is biodegradable. also jute mats are used to cover barren land to prevent soil erosion from wind and flowing water. That mats. Sir, written this in copy. You can write in this your write this in your सर classroom. बुक में अंडरलाइन कर Okay, sir. लें. हाँ बुक में भी अंडरलाइन कर सकते हैं. The mat allow enough time for natural vegetation to grow. So these mats are therefore called soil saver. इसलिए इस मैट को क्या कहते हैं? Soil saver कहते हैं, है ना? मिट्टी पे रख देने पे मिट्टी का ये नहीं, ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है ना. पानी आने के बाद भी जैसे कहीं पे बाढ़ आ जाता है बार बार, तो वहाँ पे अगर ये जूट का अगर डाल दिया तो मिट्टी जो है वहीं पे रहेगा, अब पानी तो फिर चला जाएगा ना. बुक में आप मार्क कर लो, बाद में लिख लेना. लिखा है ओके सर लोडिंग नहीं होता है क्या नेट के कारण Okay, define soil saver. Who has Sir, can unmuted the I? call? Please keep your mic off. Srishti, Suman. Thank you so much. So here you have to define soil saver. Priyal, Yes, sir. define soil saver. Why jute called Jute soil saver? mats are used to coil barren lands to prevent soil erosion from wind and flowing water. The mats allow enough time for natural vegetation to grow. These mats are therefore called soil savers. Yes. Next is coir. So coir fiber is obtained from the outer covering of coconut. Have you seen the outer covering of coconut? How many of you have seen Yes, that? sir. Yes, Raise Yes, your sir. sir. hand. yes Sir, sir I have seen. yes sir Raise Sir, your I hand. have Raise your hand. Do not unmute your call. Just raise your hand. I can see in the. Yes, I see that many of you have seen that. Okay. So आपने सबने coconut देखा है. So the outer covering of coconut is a coarse and strong. So इसका cover जो बिल्कुल ऐसा होता है, यहाँ साइड में दिख रहा है हमें. ये कोर्स कड़ा होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है. द वाइट कॉयर फाइबर इज यूज टू मेक यस सर फिशिंग देखे नेट्स हैं ड्यू टू Yes, इट्स sir. देखो रेसिस्टेंस टू सोल्डर. डू नॉट अनम्यूट योर कॉल प्लीज. यू हैव सीन द वाइट कॉयर फाइबर. तो वाइट कॉयर फाइबर भी देखे होंगे जो जिसका यूज होता है फिशिंग नेट बनाने में. अब कोई सोचेगा सर वाइट कॉयर फाइबर कैसे होगा, नारियल में तो ब्राउन कलर का होता है. बट इफ़ यू सी दैट कि अगर वो नारियल अच्छे से मतलब पका नहीं है, कच्चे में ही उसे तोड़ लिया जाए और उसमें से अगर निकाला जाए उसका फाइबर, तो वो तो वाइट सर वो कलर का होगा. वाइट वाइट रहता है. यस सर वाइट वाइट रहता है हाँ. Yes, sir. ओके ओके, म्यूट यू कॉल नाउ. यस सर वाइट वाइट रहता है ओके नाउ म्यूट यू कॉल. सो यू आर नोइंग दैट कि वाइट क्वायर जो है उसे हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. राइज हैंड कौन बताओगे. What? वाइट सर क्वायर इज यूज फॉर. डू नॉट अनम्यूट सर योर कॉल. मेरा फिशिंग डू नॉट unmute your call, just raise your hand. Do not unmute your call, just raise your hand. Do not unmute your call, just raise your hand. Sir, can you again say the question? You just listen first. Srishti Kumari, just tell me
what is the use of white coir fiber? Srishti? Sir, no in the class. Srishti is not present in the class. Sir, tell. Should I? Do not unmute your call, please. The white coil, sir, the white coil fiber is used to make fishing nets due to its resistance to salt water. Okay, Sriyansi, Yes, sir. what is the use of white coir? The white coil fiber is used for fishing net due to its resistance to salt for. Yes, very nice. The white coir fiber is used to Can I make say? fishing net due to its resistance to salt water. No. Now brown coir is used to make floor mat, doormat, brushes, ropes and pots to grow plants. तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो कि ब्राउन कॉयर किस लिए यूज़ होता है. बाकी लोग हाथ उठाओ जो बताएंगे. जैसे कि सागर शर्मा. सागर, कैन यू हियर मी? Okay, Sahil Kumar. Yes, Sahil, tell me sir. the use of brown coir. Yes, sir. Brown coir is used to make a floor mat, doorbell, brush, rope, and pot to grow plant. Yes, so to make floor mat, doormats, brushes, ropes and pots to grow plants. Okay, और एक से पूछ लेते हैं. सौम्या भारद्वाज. सौम्या, Yes, sir. what is the use of brown mat? Okay, sir. Okay, sir. Sir, फिर से बोलिए. What is the use of brown mat, Soumya? Okay, sir. Brown coir is used to make floor mats, doormats, brushes, ropes, and pots to grow plants. Yes, brown coir is used to make mats, doormats. Okay, next Astha Anand. Yes, sir. What is the other use of brown coir? It is brown coir is also used to fill mattresses and for packaging. Okay, और Brown coir pads are sprayed with rubber latex to bind the fibers together. This rubberized core is used in padding the interior parts of automobiles. yes, so brown coir is not only used in making floor mat, doormat and brushes, ropes and pots, but also it is used to fill mattresses and for packaging. Mattresses क्या होता है? गद्दा जो यूज करते हैं हम लोग घर में, यूज करते हैं ना गद्दा बेड पे. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और ब्राउन कॉयर पैड्स आर स्प्रेड विथ रबर. तो ब्राउन कॉयर का जो पैड्स है उसे रबर से स्प्रेड कर दिया जाता है. कौन सा? लेटेक्स. टू बाइंड द फाइबर टुगेदर, जिससे फाइबर सारे एक साथ होंगे. एंड दिस रबरिश कॉयर इज यूज इन पैडिंग द इंटीरियर पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल. ऑटोमोबाइल में सीट होता है ना, Yes, sir. तो वो उसमें भी यूज होता है और उसमें लेटेक्स भी यूज कर लेते हैं. तो दोनों काम हो जाता है ना. हमें पता भी नहीं चलता है किसके अंदर कॉयर है. ओके, फ्लैक्स. सो फ्लैक्स फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्किन ऑफ स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट. जैसे कि हमें जूट मिल रहा था जूट प्लांट के स्टेम के स्किन से, है ना. Yes, sir. Yes, sir. उसी तरह फ्लैक्स फाइबर भी हमें फ्लैक्स प्लांट से मिल रहा है. अच्छा, फ्लैक्स प्लांट इज सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग. Sir, soft. मतलब सॉफ्ट भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है. इट इज Strong भी होता तीनों. हाँ, इट इज़ यूज टू मेक लिनेन. ये बड़ा बढ़िया पोजीशन है. अगर मैं पूछूंगा कि लिनेन फैब्रिक बनाने के लिए कौन सा फाइबर यूज करते हैं तो क्या आंसर होगा? Flax fiber. यस यस, लिनेन फैब्रिक इज मेड बाय यूजिंग फ्लैक्स फाइबर. ओके, Sir, And- what is linen fabric? लिनेन फैब्रिक, यू सी दैट लिनेन दिख रहा है फ्लैक्स यार्न. लिनेन का धागा घर में क्या ना मम्मी दिखाएगी, या फिर लिनेन जो है हमें
देखने को मिलता है, लेनिन के कपड़े भी होते हैं, लेनून कहते हैं क्या, लेनिन है, ये बहुत जल्दी टूटता नहीं, लेनिन। Flax fiber is a raw material for making high quality paper used for printing currency। वैसे तो फ्लैक्स फाइबर जो है यूज़ होता है करेंसी बनाने के लिए, जैसे हमारा 100 का नोट, 500 का नोट है ना, 2000 का नोट, करेंसी में जो पेपर यूज़ होता है वो पेपर बनाने के लिए फ्लैक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ yarn टू फैब्रिक, एज यू नो दैट कि फाइबर्स जो है उसको लॉन्ग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है टू कन्वर्ट इनटू फैब्रिक। तो फाइबर्स को फैब्रिक बनने के लिए एक लॉन्ग प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? द फाइबर आर फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट पार्ट। तो सबसे पहले तो फाइबर को हम लोग प्लांट पार्ट से सेपरेट करेंगे। दिस इज नोन एज गिनिंग। इस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। सो गिनिंग क्या होता है? राइज योर हैंड, हु विल डिफाइन? Sir, I can tell. Do not unmute your call. Kumari. Sir, I can tell listener. I told you do not unmute your call. I can see that you are raising your hand. Simran Kaur, Yes, sir. yes, define ginning. Okay, sir. The fibers are first spread from the plant parts, that is known as ginning. Yes, the separation of fibers from the plant part is known as ginning. So in olden days, ginning was done by hand, but nowadays it is done on Machine. हाँ। Machine. तो पहले के समय में ना गिनिंग लोग हाथ से ही कर लेते थे, बट अभी के समय में ये मशीन से होने लगा है। ओके, द क्लीन फाइबर इज देन कन्वर्टेड इनटू यार्न। अब जो फाइबर जो सेपरेट किया गया उसे क्लीन किया जाता है और उसके बाद उसे यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पिनिंग। तो चलो देखते हैं स्पिनिंग कौन डिफाइन करेगा। हर्षित कुमार। हर्षित, Yes, sir. define spinning. Clean fiber is then converted into yarn. This, sir, after ginning, the clean fiber is converted into yarn. This process is known as spinning. Yes, very nicely said, Harshit. Very good. Okay, Manvi Kumari, Yes, sir. what is spinning? The clean fiber is then converted into yarn. This process is known as spinning. अच्छा, एक बात बताओ, तुम सभी लोगों से एक क्वेश्चन है। तुम लोग अपना बाल जब बांधते हो तो हमारा हेयर भी तो एक तरह से फाइबर है। अगर मान लेते हैं हमारा हेयर अगर फाइबर होता और उस फाइबर को हम लोग जब मतलब तुम स्कूल आने से पहले उसे बांधना पड़ता है ना, मैम बोली है ना कि बांध के आना है। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो Yes, sir. वो भी एक तरह से स्पिनिंग के जैसा ही प्रोसेस है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्पिनिंग प्रोसेस। जैसे हम लोग फाइबर को भी, अच्छा वैसे मैंने देखा है पहले के समय में लोग जो है ना मैनुअली स्पिनिंग करते थे, हाथ से ही फाइबर को स्पिन करके Yes, ना sir. हम वो वीडियो भी रस्सी बना देखे लेते हैं। थे। सर चरखा में ना थ्रेड डालते हैं और नहीं ना नहीं, यार्न में वो दूसरा है, वो स्पिनिंग नहीं है, वो वेविंग है। स्पिनिंग जो है वो थ्रेड बनाने के लिए करते हैं। कुछ लोग रस्सी भी बना लेते हैं उसी से, मेरे दादाजी बना लेते थे, मैंने देखा था। सर क्या चीज से? फाइबर से, जूट का फाइबर होता था बहुत सारा, उस फाइबर को वो स्पिन करके रस्सी बना लेते थे, जिससे हम तुम लोग अपना बाल गुथ लेती हो। Yes, sir. मशीन आता है, उसी से ना ये थ्रेड बनता है। हाँ, अभी तो मशीन आ गया, मशीन से हो जाता है, बट हाथ से भी Yes, होता था। सर पहले हाथ से होता था। हाथ से होता था। बट छोटा छोटा पतला पतला थ्रेड कैसे होगा हाथ से? उसके लिए तो मशीन ही चाहिए ना। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so during spinning, several fibers are twisted to form yarn. तो स्पिनिंग में क्या होता है, बहुत सारे फाइबर्स को ट्विस्ट करके क्या बनाया जाता है? थ्रेड बनाया जाता है, yarn बनाया जाता है। यार्न बनाया जाता है, यार्न थ्रेड। Okay, large scale spinning of yarn is done with the help of spinning machine. तो बहुत ज़्यादा अगर हमें yarn बनाना हो तो उसके लिए तो हम लोग को मशीन तो चाहिए ना। Yes, sir. Okay. यस सर, मशीन का यूज करते हैं। Yes, हाँ, अब क्या है कि two sets of yarn are then arranged together to make fabric. तो फैब्रिक बनाने के लिए दो सेट ऑफ yarn, एक तो हॉरिजॉन्टल yarn ऐसे करके
ऐसे करके धागा लगेगा हॉरिजेंटली, और एक इधर से लगेगा धागा वर्टिकली, Vertically. है ना। और ऐसे ही देखो, कोई भी फैब्रिक तुम लोग देखोगे ना, करीब से देखना तो ऐसा ही दिखता है हमें, दिखता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. झूठ नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलो, ऐसा दिखता है कि नहीं, सच बोलो पहले। Yes, sir. बस ऐसे ही है। Yes, sir. ओके, 2 सेट्स ऑफ yarn, Yes, sir. सर वो Yes, जो sir. जूट सर वो जो बोरा आता है उसमें भी तो वैसे ही बना रहता है, हाँ। ऐसे काटा रहता है फिर यस ऊपर यस, से- वेरी नाइस वेरी नाइस। जूट का जो बोरी आती है वो भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, बहुत बढ़िया। सर वो weaved किया हुआ रहता है। हाँ, Yes, sir. Jute से weaving से cloth. बनता सर है। वो weaved किया हुआ रहता है। हाँ। सर वो बोरा weaved किया हुआ रहता है। हाँ जी, हाँ जी। Okay, the 2 set of yarn are then arranged together or weaved to make fabric, and this is known as weaving. तो इसी को weaving कहते हैं। चलो weaving कौन डिफाइन करेगा? Raise your hand. Sir, may I? सर आई Do not unmute the Sir, call. I already told you कि ये ऐसे may I sir ऐसे नहीं करा करो। जब मैं फ़ोन से पढ़ाऊँगा ना तब पूछना। अभी मैं आज लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि आप अगर हैंड राइज करते हो तो। अमन कुमार, Okay, sir. अमन कुमार। Yes, sir. Okay, Yes, you sir. define weaving. Two sets of yarn are then arranged together, waved to make a fabric. This is known as a weaving. हाँ, तो weaving में 2 सेट ऑफ yarn को अरेंज करेंगे फैब्रिक बनाने के लिए तो weaving कहेंगे। बट व्हेन अ सिंगल yarn इज woven into fabric, उसे क्या कहेंगे? Sir, knitting. सर Yes, knitting। knitting। तो सिंगल yarn जब यूज करते हैं सर सीटी तब knitting कहते हैं। तो knitting के लिए वो घर में जो स्वेटर वगैरह बनता है ना, घर में मम्मी जो स्वेटर Yes, बनाती है वो 2 कांटा लेकर के स्वेटर बनती है ना, 2 कांटा है यस सर। और एक धागा है लेकर के ऐसे ऐसे बुन बुन के पता नहीं कैसे बना लेती है यस स्वेटर। सर, दो कांटा रहता है और एक ऊन रहता है, उससे हाँ, होता है। 2 कांटा रहता है, एक ऊन रहता है। तो वो धागा का जो रहता है वो एक ही रहता है ना। Yes, सर sir. उसी के लिए हाँ, वो तो कहते उसी के लिए उसे Yes, नाइटिंग sir. कहते हैं। तो अब समझ में आया नाइटिंग और वेविंग में क्या डिफरेंस है? यस सर। यस सर। तो नीटिंग एंड वेविंग क्या है? वेविंग में 2 सेट चाहिए यार्न का और नीटिंग में सिंगल यार्न। सिंगल यार्न। ओके, एक बार फिर से ये देख लेते हैं क्या क्या प्रोसेस था। पहले तो हमें अगर फैब्रिक बनाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले गिनिंग का प्रोसेस करना पड़ेगा। गिनिंग मीन्स व्हाट? सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम प्लांट पार्ट। तो प्लांट पार्ट से पहले फाइबर को सेपरेट करेंगे। मतलब क्या हुआ? सर कॉटन प्लांट से ना हम लोग कॉटन सेपरेट करते हैं। हाँ, तो उसको भी तो वही बोलेंगे ना, गिनिंग ही बोलेंगे। यस सर। तो सेपरेशन ऑफ फाइबर from the plant, that process is called गिनिंग। ginning। उसके बाद है उस फाइबर को हम अपना जैसे चोटी बनाते हैं वैसे उसे स्पिनिंग कहेंगे। जैसे मशीन में अगर बनेगा, हाथ से भी बना सकते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे प्रोसेस को? स्पिनिंग। यस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग। और फिर यार्न से सर फाइबर बन जाता है। फिर धागा से फैब्रिक बनाने के लिए उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वीविंग और किटिंग। वीविंग और नीटिंग। वेरी नाइस, ये तो सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। आगे देखते हैं। सो वीविंग ऑफ फैब्रिक कैन बी डन ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन कॉल्ड हैंडलूम्स। सो ये जो वीविंग का प्रोसेस है, मतलब 2 धागा जो यूज़ करते हैं हम लोग, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, ऐसे करके जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसी प्रोसेस को तो वीविंग कहते हैं। तो वीविंग ऑफ फैब्रिक, जिसमें फैब्रिक बनाने का जो वीविंग प्रोसेस है वो कैन बी डन ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन कॉल्ड हैंडलूम्स। तो पहले के समय में गांधी जी जो चरखा चलाते थे ना, तो चरखा एक मशीन है जो वीविंग करता है, वीविंग मशीन है चरखा। हमारे गांधी जी भी चलाते थे और उन्होंने खादी कपड़ा बनाया था। उन्होंने कहा था, ही सेड दैट कि डू नॉट यूज दी फॉरेन क्लोथ्स। फॉरेन क्लोथ्स अगर हम खरीदेंगे तो हमारे देश का पैसा जो है वो फॉरेन में जाएगा।
सो बेटर कि हम यस लोग सर, ब्रिटिश का कोई कपड़ा नहीं। हाँ, इसलिए बेटर कि हम लोग अपना कपड़ा बना करके पहने। अपना कपड़ा अगर हम बनाएंगे तो अपने हम धाग खुद से बना करके। हाँ, तो हमें अपना धागा खरीदना यस, होगा। इसलिए गाने गाने डिपेंड है। अपना अगर हम लोग कपड़ा बनाएंगे तो अपना धागा खरीदना होगा। अपना धागा अगर खरीदेंगे तो यस वो लोग जो धागा बनाएंगे उन्हें भी पैसा मिलेगा, है ना। जो लोग यस धागा सर। बनाएंगे, धागा कौन बनाएंगे? हमारे देश के लोग बनाएंगे। तो इसलिए हमारे देश का पैसा हमारे देश में हमारे लोगों को ही मिलेगा। तो गांधी जी ऐसा चाहते थे कि ऐसा करें, लेकिन देखो ऐसा तो अभी नहीं हो रहा। अभी हम लोग छोटा सा खिलौना भी खरीद रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा बन के? चाइना। हाँ, चाइना अरे से। वाह, तुम लोग को पता चाइना। है, से। तुम लोग को तो सब कुछ बाहर पता से है। चाइना। हाँ, तो क्या होना चाहिए? चाइना। और पता है हमारे कंट्री में ना सब द कुछ है। चाइना। हमारे कंट्री में सब कुछ है, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़ा बड़ा मशीन है, और हमारे पास रॉ मटेरियल भी बहुत है, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं, सब कुछ है हमारे पास। हम सब कुछ बना सकते हैं खुद से। तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हमारे पास सब कुछ यस अपना होगा, सर। है ना। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम लोग पढ़ लिख के बहुत बड़े आदमी बन जाओगे और तुम लोग ये चेंज लाओगे हमारे देश के लिए। यस सर। कुछ लोग जो भूल जाते हैं, बहुत लोग, और बहुत लोग याद रखते हैं कि नहीं हमें ऐसा करना है, तो आप लोग ऐसा करोगे। जिस दिन आप लोग ऐसा करोगे उस दिन हमारा कंट्री बहुत अमीर हो जाएगा, है ना। तो एसएसटी में भी पढ़ेंगे हम लोग ये सब, डोंट वरी। यस सर। द फैब्रिक दैट यस इज सर। वोवन ऑन हैंडलूम इज कॉल्ड हैंडलूम फैब्रिक। तो जो फैब्रिक हाथों से बनाया जाता है उसे हैंडलूम फैब्रिक बोलेंगे। चलो एक बार मैं पूछ लेता हूँ कौन डिफाइन करेगा। राइज योर हैंड, जस्ट डू नॉट अनम्यूट कॉल। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ ना सर। कि उन्हें पूछूं जो एक बार भी नहीं बोले हैं। बस यस यही सर। वजह है। मैं, और ये बात नहीं है कि मैं आपको चांस नहीं दे रहा। पीयूष रंजन, पीयूष रंजन, व्हाट इज हैंडलूम फैब्रिक? पीयूष रंजन इज नॉट ऑडिबल टू मी। देन खुशी कुमारी। यस सर। यस सर। सर दो खुशी है। सर दो खुशी है क्लास ओके, में। दोनों खुशी एक एक यस करके, सर। एक एक करके बोलो। पहले ये छोटी खुशी को बोलने दो। सर फर्स्ट बोले हम। हाँ बोलो खुशी। Fabric that is woven on a handloom is called handloom fabric. ओके, सो जो फैब्रिक हैंडलूम की हेल्प से वर्क किया जाता है उसे हैंडलूम फैब्रिक कहते हैं। ओके, द हैंडलूम फैब्रिक हैज़ मेनी यूज। इसका बहुत सारे यूज़ हैं। इट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट इन मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री के लगभग बहुत सारे पार्ट में ये अवेलेबल है मार्केट में। इट इज़ अ सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मैनी वेवर। बहुत सारे लोगों का ये सोर्स है अभी भी जीने का। इंडिया इज़ रिच इन ट्रेडिशनल हैंडलूम डिज़ाइन एंड क्लोथ्स। तो इंडिया में ट्रेडिशनल हैंडलूम डिज़ाइन बहुत सारे हैं पुराने। पहले हमारे यहाँ खुद हम लोग कपड़ा बनाते थे। जब जब से ब्रिटिश हम पे कब्जा करके गए हैं ना, तब से अभी तक हम लोग उन्हीं पे डिपेंडेंट है। बट पहले जब ब्रिटिश नहीं आए थे यहाँ पे, उस वक्त राजा महाराजा Excuse रहते me, थे। sir. यस सौम्या। सर यूएस की जो करेंसी है वो कॉटन से बना है। हाँ, अभी हम लोग पढ़ेंगे। सौम्या, म्यूट कॉल नाउ, प्लीज म्यूट कॉल। ओके, सो सेवरल डिवाइसेस सच एज हैंड स्पिंडल जिसे टकली कहते हैं, चरखा, वेयर यूज टू स्पिन यार्न इन ओल्डन डेज। तो पुराने समय में ये टकली चरखा यूज होता था। खादी इज अ कॉटन टकली फैब्रिक। मतलब क्या होता है? हैंड स्पिंडल, हाथ से घुमाने वाला, ठीक है। ओके सर। तो खादी क्या होता है? Yes, sir. खादी इज अ कॉटन फैब्रिक वूवन ऑन द हैंडलूम। व्हाट इज खादी? सिमरन, यस सर। व्हाट इज खादी? खादी इज अ कॉटन फाइबर वुलन एंड हैंडलूम। हाँ, खादी इज अ कॉटन फाइबर फैब्रिक woven on a handloom. So महात्मा गांधी मेड दी चरखा अ पार्ट ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। तो हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी ने चरखा भी बनाया था। अभी देखो चरखा हमारे तिरंगा में लगा हुआ है ना। हाँ, यस सर। चरखा लगा हुआ है हमारे तिरंगा में। यस सर। हाँ, और हम लोग लेकिन मशीन से बनाते हैं उस तिरंगा को। क्या दिक्कत है? वो चरखा लगा हुआ है तो वो चरखा से ही बना लेते, है ना। ओके, ही आर गुड पीपल टू वेयर खादी। तो गांधी जी ने कहा था लोगों से, रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग भी खादी पहने, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल पीपल,
ताकि लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, है ना। एंड डिस्करेज द यूज़ ऑफ मशीन मेड क्लोथ विच कम फ्रॉम इंग्लैंड, और उस समय मशीन से जो कपड़ा बना था वो इंग्लैंड से आ रहा था, उसे रोकने के लिए गांधी जी ने ऐसा कहा था। ठीक है। Yes, sir.